Good morning, student. Now we are going to take the new chapter, that is application of trigonometry. Okay. Now in the previous chapter, trigonometry, basic trigonometric ratio or simple trigonometry. Now in trigonometry lesson, that lesson is divided into 3 parts or the 4 parts. We already discussed in the last video. तो उसमें जो हमने देखा था उसमें बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल 0 डिग्री 30 45 60 एंड 90 डिग्री. Then the last one is the trigonometric identities. There are 3 trigonometric identities, that is sin square theta plus cos square theta is equals to 1. 1 plus tan square theta is equals to sec square theta, and 1 plus cot square theta is equals to cosec square theta. So these are the identities. Relations again we already discussed in the previous videos. That is sin theta is equals to 1 upon cosec theta and cosec theta is equals to 1 upon sin theta. Similarly, cos theta is equals to 1 by sec theta and sec theta is equals to 1 by cos theta. Tan theta is equals to 1 by cot theta and cot theta is equals to 1 by tan theta. After that, 2 more relations are there. That is sin theta upon cos theta is equals to tan theta and cos theta upon sin theta is equals to cot theta. Okay. Now in this chapter, application of trigonometry, the trigonometry is applicable in the question which is related with the height and distance. यहाँ पे हम सिंपल बोलेंगे, हाइट और डिस्टेंस के जो प्रॉब्लम है यहां पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं. स्पेसिफिक ऐसा आएगा नहीं कि बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्री वी कैन अंडरस्टूड दैट वी हैव टू सॉल्व द एग्जांपल बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्री. ओके, सो वी सी द एप्लीकेशंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री. तो ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस क्या है, कहां पे यूज कर सकते हैं? नेविगेशन में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं, नेवी में यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री. मींस जहां पे शिप बनते हैं, शिप का मेकिंग जहां पे होता है वहां पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज है. जहां पे बड़े बड़े ब्रिज बनते हैं वहां पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज है. जहां पे फैक्ट्रीज में जो चिमनी बनती है, जो धुआं निकालने के लिए जो चिमनी बनाई जाती है, वहां पे भी यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री है. मींस इट इज द वाइड यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बड़ा यूज है. ऐसा नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज नहीं, बट the trigonometry having the most important in the mathematics also. Okay, in algebraic mathematics. Now here we are taking the lesson, that is the trigonometry, application of trigonometry. Now here only some concepts are there, only 4 concepts are there, and on these 4 concepts, by using the trigonometric ratio of the some specific angle, we can solve the example. Now for solving the example, it is necessary you must understood what the question says. Question क्या कह रहा है उसके तरफ आपका ध्यान होना चाहिए. क्वेश्चन में जो दिया है, इंफॉर्मेशन दिया है, उस इंफॉर्मेशन को हम डायग्रामेटिकल फॉर्म में जब तक हम लोग अरेंज करेंगे, जब तक हम लोग अरेंज कर नहीं पाएंगे तब तक हम लोग प्रॉपर उसको समझ नहीं पाएंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टूड द क्वेश्चन, व्हाट इज गिवन इंफॉर्मेशन एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड. क्या फाइंड आउट करना है और क्या दिया है, और इस इंफॉर्मेशन के ऊपर हमें एक डायग्राम बनानी है. एंड इफ यू ड्रॉ द करेक्ट डायग्राम रिगार्डिंग द क्वेश्चन, then and only then you will solve the question correctly. Solution करना, solve करना, it is not difficult in this lesson. The difficult is to understand the question. Question को understand करना ये सबसे बड़ा difficult काम है. और जिसको अच्छे से इंग्लिश समझ में आती है वो तो solve करेगा ही करेगा, वो तो understood करेगा ही करेगा. Now we are taking some terms. The first term is horizontal line. सबसे पहला टर्म देखेंगे horizontal line.
व्हाट इज मीन बाय द हॉरिजॉन्टल लाइन? ओके, जनरली हम लोग जब देखते हैं, मींस हम लोग जब चलते हैं तो ऐसे नहीं चलते या फिर ऐसे नहीं चलते, हम कैसे चलते हैं? एकदम नॉर्मल, मींस नेचर से, नेचुरली हम लोग इस तरह से चलते हैं। तो ये जो लाइन है, दिस लाइन इज कॉल्ड एज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। नाउ इफ वी कंसीडर वन एग्जांपल फॉर यू पीपल, नाउ दिस इज ऑफ योर बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है आपका, और इस बिल्डिंग में ये हो गया आपका ग्राउंड फ्लोर। ओके, दिस इज ऑफ योर फर्स्ट फ्लोर, दिस इज सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और फिफ्थ फ्लोर। 5 फ्लोर है यहां पर। ये ग्राउंड फ्लोर हो गया, ये फर्स्ट फ्लोर हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। मान के चलो पर्सन यहां पे ग्राउंड फ्लोर पे है, यहां पे पर्सन है, तो पर्सन है तो ये पर्सन ऊपर नहीं देखेगा, नीचे नहीं देखेगा। जनरली ये पर्सन किस तरह से देखेगा? ऐसे देखता है, सिंपल, ये लाइन में। एंड दैट लाइन, ये जो पर्सन इस तरह से देखता है, द स्ट्रेट लाइन which is parallel to the x axis. X axis is the horizontal axis and the line which is parallel to the x axis is called as a horizontal line. तो horizontal line ground level से बनता है, जरूरी नहीं है। पर्सन फर्स्ट यहां पे है, पर्सन फर्स्ट फ्लोर पे पर्सन है, तो ये बन गया इसके आंखों का पैरेलल लाइन, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ओके, ये आंखों से ये इधर देख रहा है, सिंपल सा, नेचुरली, तो ये बन गया इसका हॉरिजॉन्टल लाइन। पर्सन यहां पे खड़ा है, थर्ड फ्लोर पे खड़ा है पर्सन। ओके, तो ये बन गया इसका हॉरिजॉन्टल लाइन। एंड ऑल दीज लाइंस आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, मींस वी कैन ड्रॉ द हॉरिजॉन्टल लाइन at any point and at anywhere। हम कहीं पर भी कोई भी पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अनदर एग्जांपल, नाउ दिस इज ऑफ योर पॉइंट ए, कैन वी ड्रॉ द हॉरिजॉन्टल लाइन? एज सिंपल, वी कैन ड्रॉ द लाइन which is parallel to the x axis, so this is of your horizontal line। The person is standing at point B, यहां पे खड़ा है पर्सन, ये होगी हॉरिजॉन्टल लाइन। Means there are the infinite number of the horizontal lines we can draw from different point, और एक सिंगल पॉइंट से एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन निकलेगी, either this direction or this direction। वर्टिकल डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं होगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हमने हॉरिजॉन्टल लाइन को इतना ट्रेस क्यों किया? बिकॉज द हॉरिजॉन्टल लाइन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर। ओके, नाउ द सेकंड, द फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल लाइन, सेकंड इज लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, या फिर इसको विजन भी बोलते हैं। विजन, विजन का मतलब दृष्टि, मराठी में बोलते हैं उसको दृष्टि, आंखें जिधर देखती है, विजन। नाउ इफ द पर्सन इज स्टैंडिंग हियर, ये पर्सन है इसका, ये है पर्सन आपका, और चिड़िया यहां पे उड़ रही है, या फिर यहां से एरोप्लेन जा रहा है, यहां से जा रहा है एरोप्लेन, ये एरोप्लेन है आपका। ओके, और पर्सन यहां पे है, पर्सन थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं, ये ले लिया मैंने पर्सन, इसकी आंखें है ये, तो ये क्या करेगा? इसको देखेगा इस तरह से। ओके, मींस एरोप्लेन से इधर नहीं आएगी लाइन, कहां से आएंगी? ये पर्सन की आंखों से इधर लाइन जा रही है। सो दिस लाइन इज कॉल्ड एज अ लाइन ऑफ साइट, और वी कैन से दैट लाइन ऑफ विजन। इसको हमने क्या कहा? लाइन ऑफ विजन। पर्सन यहां पे है, ये पर्सन हो गया आपका, और यहां पे ये फर्स्ट फ्लोर पे पर्सन है, और ग्राउंड फ्लोर पे कोई तो भी जा रहा है, ये कार है, यहां पे ये कार होगी, ये कार जा रही है ग्राउंड फ्लोर पे। पर्सन कहां पे है? फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा है, और कार कहां जा रही है? ग्राउंड फ्लोर से जा रही है, रोड से जा रही है, तो नेचुरली ये पर्सन इधर देखेगा, तो ये बन गया आपका लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइन ऑफ साइट? इट इज द लाइन from the person, or we can say that object, observer, not object, observer। ये observer है, and this is of your object, ये है आपका ऑब्जेक्ट।
मींस इट इज द लाइन फ्रॉम ऑब्जर्वर टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट के तरफ जो लाइन जा रही है दैट इज कॉल्ड एज अ लाइन ऑफ विजन, और वी कैन से दैट लाइन ऑफ साइट। साइट का मतलब दृष्टि, मैंने पहले ही बता दिया आपको। ओके, तो व्हाट इज मीन बाय द लाइन ऑफ साइट? इट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम और पासिंग थ्रू द ऑब्जर्वर टू द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज अ line of sight or line of vision. After that, third, next one. The third is angle of elevation. Angle of elevation. Elevation का मतलब क्या होता है वो देखेंगे. Elevation बढ़ना, elevated बढ़ना. Okay? अब elevation कब तैयार होगा? Now see, the person is standing here. ये पर्सन है आपका और एरोप्लेन जा रहा है यहां पर, ये हो गया आपका एरोप्लेन, मान के चलेंगे। तो पर्सन क्या कर रहा है, यहां से देख रहा है, तो ये बन गया आपका लाइन ऑफ साइट। दिस इज ऑफ योर लाइन ऑफ साइट। ओके, अब पर्सन यहां पे खड़ा है तो यहां से आप लोग हॉरिजॉन्टल लाइन निकाल सकते हैं, तो ये एंगल बन गया। मींस यहां पे पर्सन इस तरह से खड़ा था नॉर्मली हॉरिजॉन्टल लाइन में, और एरोप्लेन देखा ऊपर, तो नेचुरली हमारी गर्दन जो है, हमारी नेक जो है वो कैसे हो जाएगी, इस तरह से बनेगी। मींस हम ऐसे देख रहे थे, अब हम एरोप्लेन को देखने के लिए क्या हो गए, इस तरह से मुड़े, तो ये जो एंगल बन गया। मींस पहले जो पर्सन था, पर्सन ऐसे देख रहा था पहले, मगर एरोप्लेन देखते बराबर उसने अपनी गर्दन को इस तरह से मोड़ा, तो ये जो एंगल बन रहा है दैट इज कॉल्ड एज अ एंगल ऑफ एलिवेशन। तो दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल लाइन। मींस द एंगल मेड बाय हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द लाइन ऑफ साइट व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट इज अबाउट द हॉरिजॉन्टल। ऑब्जेक्ट कहां पे है, हॉरिजॉन्टल के ऊपर है, और जब ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल के ऊपर है तो एंगल मेड बाय द हॉरिजॉन्टल विद द लाइन ऑफ साइड, दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब ऑब्जेक्ट नीचे रहेगा और ऑब्जर्वर ऊपर रहेगा, मान के चलेंगे ये आपका ऑब्जर्वर है, ओके, और ऑब्जेक्ट इधर है, ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका, तो ये बन गई आपकी लाइन ऑफ साइट। दिस इज ऑफ योर लाइन ऑफ साइट, और यहां से निकलेगा हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हम ऐसे थे, अब हमको क्या देखना है, नीचे, तो नीचे ऐसे देखेंगे, मींस नीचे गर्दन मुड़ गई हमारी, तो ये जो एंगल बन रहा है नीचे की डायरेक्शन में, दिस इज कॉल्ड एज द फोर्थ पॉइंट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। आपको पता है ना डिप्रेशन का मतलब, डिप्रेशन में अपनी गर्दन कहां होती है, नीचे चली जाती है, ऐसे नहीं रहते डिप्रेशन में, डिप्रेशन में हमारी गर्दन नीचे चली जाती है। ओके, मींस दिस इज ऑफ योर एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन दे आर, थोड़ा सा डिफरेंस है उनके बीच में। तो एंगल ऑफ एलिवेशन में क्या बोला हमने, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अबाउट द हॉरिजॉन्टल then the angle made by horizontal with the angle of line of sight is called as a angle of elevation, and when the object is below the horizontal and below the horizontal and the angle made by the horizontal with the line of sight, this is called as an angle of depression. ये समझ गए, means angle of elevation और एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान में रखना है आपको कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन में आपके जो दो लाइन है उसमें एक लाइन ऑफ साइड होनी चाहिए और दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल लाइन में यहां पर आपका एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों नहीं बनेगा। ओके, नाउ हियर नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल टेक हियर। गॉट इट, अंडरस्टूड? ये समझ में आ गया आपको, हॉरिजॉन्टल लाइन, लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, दोनों तीनों समझ में आ गई चीजें। अब हम बढ़ेंगे एग्जाम्पल के ऊपर बढ़ेंगे। अब
एग्जाम्पल में देखेंगे कि क्या दिया है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन कभी भी ध्यान में रखिए आपको, मींस जब भी हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन कंसीडर करेंगे, सो वी विल कंसीडर द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द लाइन ऑफ विजन और लाइन ऑफ साइट, ये ध्यान में रखेंगे आप। ओके, सेकेंड थिंग आपको ये ध्यान में रखना है कि बिल्डिंग हो या फिर कोई माउंटेन हो या फिर टार हो, ओके, सो ऑल दीज आर द वर्टिकल लाइंस, ये सभी हम लोग स्ट्रेट लाइन कंसीडर करेंगे, वर्टिकल लाइंस कंसीडर करेंगे। और यहां पर हमने एक एग्जांपल लिया है, एक्सरसाइज का ही एग्जांपल है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप। अब रोप दिया है और क्लाइंबिंग दिया है, ओके, मींस ये सर्कस आर्टिस्ट है, क्लाइंबिंग किसके ऊपर चढ़ रहा है, वो 20 मीटर लॉन्ग रोप के ऊपर, and which is tightly straight and tied from the top of the vertical pole। तो नेचुरली हमको एक पोल चाहिए, तो ये हो गया आपका पोल, गॉट इट। नाउ AB is the pole, यहां पे AB पोल हो गया, ये हो गया उसका बेस, तो यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, गॉट इट। नाउ फाइंड द मींस द सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप, एक 20 मीटर का लॉन्ग रोप है, which is tightly stretched and tied from the top ऑफ द वर्टिकल पोल, यहां पे बांधा हुआ है उसको टू द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ में बांधा है, तो ये यहां पे बांध गया है, ओके, तो ये एंगल बन गया आपका 90 डिग्री। ये है आपका, दिस इज द लेंथ ऑफ द रोप, दैट इज ऑफ इक्वल्स टू 20 मीटर। नाउ दिस इज ऑफ योर हाइट ऑफ द रोप, गॉट इट। नाउ दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द रोप एंड द पॉइंट वेयर द रोप इज अटैच्ड टू द ग्राउंड, ओके। Now here find the height of the pole, means आपको पोल का हाइट फाइंड आउट करना है। If the angle made by the rope, रोप ने एंगल बनाया है किसके साथ, ग्राउंड के साथ, तो ये हो गया ग्राउंड, ये रोप नहीं है, ये है हाइट ऑफ द पोल, ये है रोप, तो ये बन गया आपका एंगल दैट इज ऑफ इक्वल्स टू 30 डिग्री। डायग्राम एकदम क्लियर समझ में आ गई। अब सॉल्व करना बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। कैसे इजी है वो देखो, सिंपल, आपको जो जो चीजें दिख रही है वो लिख लीजिए आप। यहां पर क्या दिख रहा है, ए बी दिख रहा है, ए बी इज हाइट ऑफ पोल, लिख लिया। उसके बाद में ए सी क्या है, ए सी इज लेंथ ऑफ रो, लेंथ ऑफ द रो, लिख लिया। नाउ एंगल थीटा मींस दिस एंगल, एंगल BAC BCA, or we can say that angle ABC is the angle made by, किसने बनाया, रो with ground, ये लिख दिया, बस खत्म, इतना लिख दिया। अब आपको निकालना है हाइट, और आपके पास में हाइपोटेन्यूज अवेलेबल है, मींस यहां पे एंगल कंसीडर किया मैंने। अब एंगल का अपोजिट साइड फाइंड आउट करना है, और हाइपोटेन्यूज दिया है, तो अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन देने वाला एक ही रेशियो है, एंड दैट रेशियो इज द साइन रेशियो। देयरफॉर वी विल कंसीडर हियर साइन ऑफ एंगल BACA is equals to opposite side, that is AB divided by hypotenuse AC, got it। Therefore sin एंगल कितने का है, 30 डिग्री का, is equals to AB, AB means क्या, H, और AC means क्या, 20। Now what is the value of sin 30? आपके पास वैल्यू है sin 30 का, नहीं क्या, sin 30 का वैल्यू कितना है, 1/2 is equals to H upon 20, therefore H is equals to what, 10। हाइट ऑफ द पोल 10 आ गया, तो यहां पे आंसर क्या हो गया, therefore height of pole is 10 मीटर, 10 मीटर। जब तक आप ये लिखोगे नहीं तब तक आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे नहीं। पूरे मार्क्स मिलने के लिए आपको लिखना जरूरी है, हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर, ओके। नाउ वी कैन सी हियर नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग। अब यहां पे दूसरा एक क्वेश्चन लेंगे हम लोग, तो यहां पे क्वेश्चन क्या दिया है, अ ट्रेन ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म, ट्री है, ये हो गया आपका ट्री, ये आ गया आपका ट्री, ओके। यहां पे नाम दे देता हूं मैं AB, ये हो गया आपका ट्री। अब ट्री क्या हुआ, स्टॉर्म की वजह से, मींस जो ये आ गया, मींस क्या बोलेंगे, एयर का जो आता है ना,
स्ट्रोम, उसकी वजह से ब्रेक हो गया और ब्रोकन पार्ट जो हो गया मींस यहां पे बेंड हो गया वो सी पे, और ये जो पार्ट है ये पार्ट आ गया इस तरह से। नहीं समझा? नहीं समझे क्या? ये ट्री है, अब ये ट्री का क्या हो गया, यहां से ब्रेक हो गया, यहां से ब्रेक हो गया, पूरा ऐसा उगड़ के ये पूरा पोर्शन दूसरी जगह नहीं गया है, ये ट्री यहां से ब्रेक होके कहां पे चला गया, इधर चला गया। मींस एक एग्जांपल के तौर पे मैं एक स्केल ले रहा हूं, यहां पर ये ले गया, ये ट्री है आपका, और ये ट्री को यहां से ब्रेक किया। अब ब्रेक किया इसका मतलब पूरा का पूरा ये पोर्शन उनके उधर नहीं चला गया दूसरी जगह, तो ये क्या हो जाएगा, इसे झुक जाएगा। रास्ते पे आपने देखा होगा, तो ये झुक के क्या हो गया, ग्राउंड को टच किया उसने। ओके, तो ये हो गया आपका ग्राउंड, गॉट इट। तो टच किया है यहां पे, ये नाम दे देते हैं मैं डी, अंडरस्टूड। अब आपको पता है ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, दोनों पोर्शन कैसे हो गए, सेम लेंथ हो गए। क्यों सेम लेंथ है, क्योंकि जितना पोर्शन यहां पे बेंड हुआ है उतना ही ये दिया है यहां पर, गॉट इट। नाउ टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड एंड एंगल ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री का एंगल बनाया इसने, तो ये बन गया आपका 30 डिग्री का एंगल ग्राउंड के साथ में। द बिटवीन द फुट between the foot and the tree, top of the touches the tree is 8 meter. The distance between चाहिए यहां पे, the distance लिखना भूल गए आप। The distance between the foot of the tree means ये वाला portion, and the top touches the ground, ये यहां पे टच किया, is what 8 meter, that is ये वाला हो गया 8 meter. Find the height of the tree means ये पूरा हाइट आपको फाइंड आउट करना है। अब पूरा हाइट यहां पे दो पार्ट में डिवाइड है, पहला हो गया BC और दूसरा हो गया AC। AC का मतलब CD, ओके। तो यहां पे लिखेंगे, यहां पे ACB इज हाइट ऑफ ट्री, ठीक है। मैं ये दो एग्जांपल में लिखवा के दे रहा हूं, इसके बाद के एग्जांपल में लिखवा के नहीं दूंगा, डायरेक्टली करेंगे, ओके। आपको लिखना है वो, ओके। नाउ दिस BD आपको पता है क्या है, तो BD इज अ डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ ट्री एंड टॉप टचेस द ग्राउंड, ओके। यहां पे लिख दिया द ग्राउंड, ओके। अब हमको चाहिए, ये दो चीजें चाहिए हमको, तो यहां पे 30 डिग्री का एंगल है, तो सबसे पहले sin 30 अप्लाई कर रहा हूं मैं यहां पर। क्यों sin 30 अप्लाई किया, क्योंकि अपोजिट साइड है मेरे पास, तो sin 30 की जगह मैं ये भी अप्लाई कर सकता हूं। नाउ सी हियर, ये चाहिए ना अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड दिया है, तो सॉरी tan 30 अप्लाई करेंगे, tan 30 ज्यादा इजी हो जाएगा हमारे लिए, ओके। नाउ एडजेसेंट साइड हमारे पास है, अपोजिट साइड फाइंड आउट करना है। tan 30 इज इक्वल्स टू BC अपॉन व्हाट, BD। tan 30 का वैल्यू कितना है, 1 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू BC नहीं पता आपको, और BD है आपका 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई से 8 अपॉन √3, 8 अपॉन √3, ये हो गया BC का वैल्यू। इतना समझ में आ गया। अब दूसरा, अब चाहिए आपको ये वाला वैल्यू, हाइपोटेन्यूज चाहिए, गॉट इट। अब आपके पास एडजेसेंट साइड है और हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो आप क्या अप्लाई करेंगे, cos अप्लाई करेंगे, तो cos 30 फॉर्मूला है एडजेसेंट साइड दैट इज BD डिवाइडेड बाय क्या, CD, हाइपोटेन्यूज CD। cos 30 का वैल्यू कितना हो गया, √3 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू BD कितना है आपके पास 8 अपॉन CD कितना है पता नहीं, CD का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो CD इज इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, CD इज इक्वल्स टू, इसको ट्रांसफर किया इधर, तो ये यहां पे आ गया 16, 8 2 जा 16, और ये √3 आ गया नीचे। पहले एक बार चेक कर लेंगे कि क्या दोनों वैल्यू सही है या गलत है, ओके। 1 अपॉन √3 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो BC into √3 is equals to 8, so BC is equals to 8 upon √3, करेक्ट है। दूसरा यहां पे किया cos 30 का वैल्यू √3 upon 2, BD is equals to 8 upon CD, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 16 CD into √3, तो CD is equals to 16 upon √3, दोनों वैल्यू करेक्ट है। अब दोनों वैल्यू का एडिशन करना है हमको, गॉट इट। दोनों वैल्यू का क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, बिकॉज हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल्स टू नाउ BC प्लस CD इज इक्वल्स टू 8 अपॉन √3 प्लस 16 अपॉन √3।
तो ये बन गया आपका 16 प्लस 8, क्या मिलेगा 16 प्लस 8 24 अपॉन रूट 3। अब डिनोमिनेटर में रूट 3 आया तो डिनोमिनेटर में कभी हम लोग रूट नहीं लगते, तो इसको क्या करेंगे रैशनलाइज। तो रैशनलाइज के लिए आपने रूट 3 से मल्टीप्लाई एंड रूट 3 से डिवाइड किया, देयरफॉर व्हाट वी विल गेट हियर 24 रूट 3 अपॉन 3। ओके, तो आपका आंसर आएगा 3 1 जा 3 एंड हियर 3 8 जा 24 ना, तो 3 8 जा 24, तो 8 रूट 3। देयरफॉर height of the tree is equals to 8 रूट 3 मीटर, या फिर 8 इंटू रूट 3 का वैल्यू 1.73 डालेंगे तो you will get your answer. Understood? So in this way you can solve such type of the example.